Dear students, once again I am back here with a new video of the second part of the chapter 1, the best Christmas present in the world. Now, before moving towards the second part, let us have a look over what we read in the first part of the chapter. Okay, so let us see what we saw here. The chapter is the best Christmas present in the world. In the first part, we saw that how an author wanted to buy what a roll top desk, but he could not buy it as it was too expensive because it was made up of oak wood. Now he bought a roll top desk from a junk shop, okay, at a very low price, at a cheap rate, for very little money. And when he started repairing that roll top desk on Christmas Eve, okay, what he found a letter, a tin box. First, he found a tin box in a secret drawer, isn't? And in that tin box, he found a letter, handwritten letter, and on that, what address was written? Jim McPherson, Copper Beaches, Bridport, Dorset. So what he did, he removed that letter from that envelope, unfolded that, and started reading the letter. Now let us see what he read in that letter. उसने उस लेटर में क्या पढ़ा? तो this second part of the chapter is that letter which the author is reading over here. Okay, so let's start with the second part of this chapter. See here, dearest Connie. ठीक है, तो Connie it means the person named Jim is writing a letter to his wife named Connie. Okay, that's why he has mentioned your salutation, that is dearest Connie. I write to you in a much happier frame of mind. In much happier frame of mind. फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है हमारे उस समय हमारा क्या मूड होता है ना. दैट इज सेड टू बी द फ्रेम ऑफ माइंड, द मूड ऑफ द पर्सन, एंड हियर इट इज़ इन अ हैप्पियर मूड. So he says here in the letter, I write to you as I am in a very happy mood. Now why he is very happy here? His mood is quite positive, quite relaxed, good mood. Because something wonderful had just happened. Something wonderful had just happened that I must tell you about at once. So he want to say that कुछ ऐसा वंडरफुल यानी वेरी सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छी बात हुई एट वंस यानी अचानक से, विच ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड, जो उसने नहीं सोचा था. We were all standing two in our trenches yesterday morning, and that morning was of Christmas morning. So here we here means the soldiers, okay, and Jim, who was the officer of that army, of that troop. So we all were standing in our trenches. Trenches are the जो डीप गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसके अंदर ये सोल्जर्स खड़े रहते हैं ताकि वो सामने वाले जो सोल्जर्स या एनिमीज होते हैं उनको वो नज़र नहीं आ सके, एंड फ्रॉम दैट दे कीप ऑन फायरिंग. ओके, दैट थिंग दिस दैट डीप डिचेस, गड्ढे जो होते हैं, दैट आर सेड टू बी ट्रेंचेस. So this all people were in their position in the morning time. Now a war was going on between, as I have already told you, between this British and Germans. War चल रहा था इनके बीच में, and these all people were there on that battlefield. So these people were in their position in those trenches, and it was Christmas morning. Now what he saw on that Christmas morning, that thing was surprising for him. So this thing we are going to see over here. Now that Christmas morning was crisp and quite all about as beautiful as a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Crisp means बहुत सूखी, hard and dry. ठीक है, तो he says here that it was crisp and quite about all about, मतलब हर तरफ एक शांति सी थी. एवरीथिंग वॉज क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग. जनरली जैसी क्रिसमस मॉर्निंग जितनी ब्यूटीफुल होती है, सेम थिंग वॉज देयर ऑल्सो.
as cold and frosty as a Christmas morning should be. So what he says, a Christmas morning कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, cold and frosty, and the thing which he had expected was same over there. I should like to be able to tell you that we began it. Now here he want to say, I should like to be able to tell you that we began it. Now here this person Jim says that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Here it means he want to say कि जो चीज़ मेरी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए थी, जो चीज़ हमको शुरू करनी चाहिए थी, वो सामने वाले जो अपोजिट आर्मी थी उन्होंने शुरू की. ओके, नाउ क्या शुरू की उन्होंने, लेट अस रीड अबाउट इट. आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ कि फ्रिट्स बिगेन इट. नाउ फ्रिट्स यू कुड सी अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर. ठीक है, जर्मन सोल्जर जो होते हैं उनको फ्रिट्स कहा जाता है. एक कॉमन नाम होता है एक्चुअली फ्रिट्स. तो जर्मन, जैसे वी पीपल, हम इंडिया को बिलोंग करते थे, वी आर कॉल्ड एज इंडियन. हियर दे आर सेड एज फ्रिट्स. और यहाँ पर सोल्जर को फ्रिट्स कहा गया है, और जो ब्रिटिश आर्मी के जो होते हैं उनको टॉमी कहा जाता है इन दिस चैप्टर हियर. So he says that a Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Okay, means someone saw a white flag waving from the trenches opposite. It means उन्हीं सोल्जर्स में से किसी ने एक फ्रिट्ज सोल्जर को वाइट फ्लैग वेव करते हुए देखा उनकी ट्रेंचेस में से जब वो सब खड़े थे ऑपोजिट. Now here, why, as you people must be knowing this thing that white flags are waved for peace, है ना. जब वाइट फ्लैग वेव किया जाता है वॉर के टाइम, इसका मतलब आपको वॉर रोकना है, पीस के लिए होता है, नो वॉर. सो ही सॉ, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. They were calling out to us. They were calling out to us from across no man's land. Here no man's land means it is an area between two opposite armies. दो opposite armies होती है, उनके बीच में जो एरिया होता है to perform their fight, okay, a battle, that is called as no man's land. So they were calling out to us from across no man's land. सामने से कोई वाइट फ्लैग वेव करता हुआ क्या कह रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. Tommy, you know, a common English name used here to refer to British soldiers. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back. It means इसके पहले कि हम इस सरप्राइज को, मतलब we would overcome this surprise, we were so much shocked to see this thing that someone is विशिंग हैप्पी क्रिसमस फ्रॉम देयर. तो उनकी ही, यानी कि जिम के सोल्जर्स जो थे आर्मी के, जो उसमें से किसी एक सोल्जर ने वापस रिप्लाई किया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. और जब ये सारा सीन चल रहा था, दिस ऑल पीपल वर डूइंग दिस ऑल दिस थिंग वी ऑल डिड, तभी सडनली अचानक से अ पर्सन इन अ ग्रेट कोट, ग्रे कलर का बड़ा सा कोट पहन रखा था, एंड ही वॉज, वो उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, वेविंग अ वाइट फ्लैग सो दैट दिस पीपल वोंट अटैक दैम. डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. तो किसी ने ज़ोर से आवाज़ दी कि शूट मत करना, डोंट शूट लैड्स. लैड्स मीन्स योर बॉयज़. एंड नो वन डिड एंड नो बडी शूट दिस. एंड देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट. तो ऐसे एक एक करके एक फ्रिट्स आया, पहले वाइट फ्लैग वेव करता हुआ, फिर दूसरा आया. तो वन बाय वन दे स्टार्टेड कमिंग ऑन दैट पैरापेट. पैरापेट इज़ अ वॉल, एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है, एंड दिस वॉल प्रोटेक्ट द सोल्जर्स व्हेन दे आर बीइंग अटैक फ्रॉम देयर ऑपोजिट वन एंड अनदर. ठीक है, तो वन आफ्टर अनदर दे स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स दिस पीपल. कीप योर हेड्स डाउन. ओके,
So I then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the men. It's a trick. But it wasn't. So Jim ordered his soldiers to keep their heads down, यानी अपने सिर नीचे कर दो. He was thinking that it may be a trick. ये उनकी कोई चालाकी हो सकती है, उनकी कोई चाल हो सकती है to attack us people by waving this white flag and showing peace and all that. But it wasn't. लेकिन ऐसा नहीं था. ये उनकी कोई ट्रिक नहीं थी. One of the German was waving a bottle above his head. It is a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage, we meet you. Yes? By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. It means one of the Germans, वो जो soldiers आ रहे थे उसमें से एक जो soldier था German, he was waving his, मेरे सिर के ऊपर एक बॉटल लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था. और what he was saying, it is a Christmas day, कि आज क्रिसमस का दिन है. Tommy, we have schnapps. Schnapps is a German drink made from grain. You could see here a German drink made from grain. Grain यानी जो होते हैं उससे एक ड्रिंक बनाई जाती है, उसको स्नैप्स कहा जाता है और ये जर्मन ड्रिंक होती है. तो what he says, we have schnapps, we have sausage. Sausage is also kind of made up of meat and all that. ठीक है, काइंड ऑफ एक वैरायटी होती है ईटेबल. वी मीट यू. यस, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ. बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस. और ऐसे करते करते डजन्स यानी 12-13 लगातार वो सारे सोल्जर्स एक एक करके उनकी तरफ बढ़ने लगे और उनके हाथ में कोई भी राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. It means one of the soldiers named Little Private Morris जो सबसे पहले आगे आया. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. तो इस तरह से जिम की तरफ के जो सोल्जर्स थे वो भी आगे बढ़ जाते हैं. उन्होंने देखा ये तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं हमारे साथ, तो वाई शुड नॉट वी डू दिस थिंग. तो वो भी आगे बढ़ते हैं, जिम के सोल्जर्स भी, और वहाँ से तो आ ही रहे होते. देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम. कोई भी फिर उनको रोक नहीं सका. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन. मैं उनका ऑफिसर था, मैं चाहता तो मेरे सोल्जर्स को मैं रोक सकता था. बट आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ डैट इट नेवर एवर इवन ऑकर टू मी आई शुड. इट मीन्स लेकिन सच ये था कि मैंने भी इसको गलत नहीं समझा. इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, यानी द थिंग विच आई हैव टू डू, मुझे जो चीज़ करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका एज अ ऑफिसर. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनादर. तो मैंने देखा कि उनकी जो एरिया है लाइन और मेरी एरिया आर लाइन, पीपल दिस सोल्जर्स Fritz and Tommys are walking towards each other. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. So grey coats are of who people? These are Fritz and Tommy. People of soldiers of Jim's army were of khaki coats. They all met in that middle, that in the no man's land, and I was one of them. मतलब मैं भी उनके बीच में एक ऐसा था जो उनके साथ मिल गया. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. मीन्स दिस पीपल वर पोस्टेड देयर टू हैव अ वॉर विद ईच अदर, isn't? But these people were making peace because it was a Christmas day and they want to celebrate this day on that no man's land, on that battlefield. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. So Jim says, you can't even imagine, dearest Connie, my feelings. यानी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उस समय मेरी क्या फीलिंग्स थी. एज आई लुकड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर. ओके, जिम वॉज द जर्मन ऑफिसर
and when he looked into the eyes of the Fritz officer who came towards him, approach मतलब उसकी तरफ जो बढ़ा, उसने अपना हाथ आगे किया, hand outstretch मतलब हाथ आगे बढ़ाना, and he introduced himself to Jim, उसने अपना introduction Jim को दिया. Hans Wolf, the name of that Fritz officer was Hans Wolf. He said, gripping my hand warmly and holding it. Gripping का मतलब जब हम किसी का हाथ मिलाकर हाथ पकड़ते हैं, isn't holding the hand, that is said to be gripping and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो कहता है मैं डसलडॉफ से हूँ और यहाँ पर पोस्टिंग से पहले व्हाट ही यूज्ड टू डू, आई प्ले द सेलो इन orchestra, means beside an officer he also plays cello in the orchestra, and he wishes him happy Christmas. So here it is Hans Wolf, Fritz officer. After hearing his introduction, Jim introduced himself, Jim McPherson, and a happy Christmas to you too. और वो भी वापस उसको रिप्लाई करता है हैप्पी क्रिसमस. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट in the west of England. So what we read now, that Hans Wolf, who was a Fritz officer, German officer, he used to play cello in the orchestra and he belongs to Dusseldorf. And here Jim McPherson, who is a school teacher from Dorset in the west of England. Dorset, he smiled. तो जैसे ही जिम कहता है कि मैं डोरसेट में एज ए स्कूल टीचर हूँ, तो हैंस वुल्फ जो है वो कहता है डोरसेट. ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ. आई न्यू इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज. यानी वो दोनों जो ड्रिंक थी और जो भी खाने की चीज़ थी वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और बातें कर रहे थे. ठीक है. कोनी, हाउ वी टॉक्ड. He spoke almost perfect English. Means though Hans Wolf was a German soldier, जर्मनी का था वो डस्सेल्डॉर्फ से, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी सी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था. But it turned out that now that person who was speaking English perfectly, it turned out that he had never set foot in Dorset. अब यहाँ पर इट वॉज़ अ क्वेश्चन कि वो कभी डोरसेट आया नहीं इंग्लैंड, तो फिर वो इतनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलता है. ही हैड नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. इसका मतलब वो इंग्लैंड भले ही कभी भी नहीं आया हो, लेकिन उसने जो भी इंग्लिश सीखी वो थोड़ी बहुत स्कूल से और वो इंग्लिश बुक्स पढ़ के ही बिकेम फ्लुएंट इन English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So, out there in no man's land, we talked about Bathsheba, Gabriel Oak, and Sergeant Troy and Dorset. Means this was the conversation part of these people. बुक्स के बारे में, राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, इन सब के बारे में ये एक दूसरे से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं. He said, Hans Wolf said that he had a wife, one son, born just 6 months ago, यानी 6 महीने का बच्चा है उसके. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और दिस जिम सेज, और मैं देख रहा था कि किस तरह से खाकी और ये ग्रे कोट्स वाले यानी फ्रिट्स और टॉमी सोल्जर्स जो थे कैसे एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. कोई कह भी नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है. तो ये दोनों सोल्जर्स जो थे, आर्मीज जो थे, ये इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी. ओके, तो ही सेज वी शेयर्ड क्रिसमस केक एवर टेस्टेड. तो वो shared what was left of your wonderful Christmas cake, Coney. He thought that the marzipan was the best he had ever tasted. You could see here marzipan is a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. ठीक है, बादाम
एग और इनसे बना हुआ शुगर का एक मीठा उसके ऊपर कोटिंग होती है केक के ऊपर, उसको मार्जिपन कहते हैं। और ये सबसे चीज़ उसको सबसे टेस्टी लगी हैंस वुल्फ को, जो कोनी वुड हैव सेंड फॉर जिम। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। There never was a Christmas party like it, Coney. It means Jim was to want to say here that we people were enemy of each other. हम एक दूसरे के दुश्मन होके इस तरह से एक दूसरे के साथ बैठे थे and enjoying everything, talking, laughing, smoking, eating and everything. तो no one could say that a war is going on between these people. तो he say there was never a Christmas party like it, Coney. यानी मेरी लाइफ में ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी, एंड नेवर इमेजिन सच काइंड ऑफ क्रिसमस पार्टी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर एक कोई आया, पता नहीं कौन, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हियर इट मीन्स कि उन्होंने अपने कोट्स उतार कर एक डंप यानी ढेर लगा दिया, पाइल, ठीक है, गोल पोस्ट बनाने के लिए। फुटबॉल खेलते तो गोल पोस्ट की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट थिंग ये था कि ये क्लियर था कि ये फुटबॉल मैच किसके बीच में, टॉमी और फ्रिट्स के बीच में फुटबॉल होने वाली थी, मैच इन नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और जिम दोनों बैठ के ये मैच देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। हाउ दे वर इन्जॉइंग, चीयरिंग, क्लैपिंग आवर हैंड्स, स्टैम्पिंग आवर फीट। पैरों से भी हम स्टैम्प करके इन्जॉय करते हैं ना, व्हेन वी गेट वेरी एक्साइटेड। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मैंने एहसास किया, एक ऐसा मोमेंट था व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स, हमारी सांसें हवा में घुल मिल रही हो। इट मीन्स दे ऑल पीपल इक्वली प्लेइंग विद ईच अदर हैप्पीली। ही सॉ इट टू एंड स्माइल। मीन्स हैंस वुल्फ भी ये चीज़ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जिम मैकफरसन, हैंस वुल्फ सेज, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिवॉल्व दिस वॉर। तो हैंस सेज टू जिम कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व यानी किसी भी वॉर का एंड अगर हम किसी भी मैच के थ्रू, किसी भी स्पोर्ट्स मैच के थ्रू करें तो इट इज़ मच बेटर देन हैविंग अ वॉर विद दिस guns, rifles and such type of anti-elements. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. अगर हम दो ऑपोजिट आर्मीज़ के बीच में अगर हार जीत का फैसला करना ही है तो सबसे अच्छा तरीका है मैच रखना, है ना। नो बडी विल डाई इन दिस, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई भी किसी की भी वाइफ विडो यानी विधवा नहीं होगी, एंड नो वन विल डाई, कोई भी इस मैच में मरता भी नहीं है, और इस तरह से हार जीत का फैसला भी इजीली हो जाता है। तो वाई वी शुड हैव अ वॉर, सच काइंड ऑफ वॉर बिटवीन ईच अदर। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम से अगर ऐसा होता है, अगर मैच रखा जाए टू रिजॉल्व द वॉर, व्हाट ही वुड प्रिफर, वो क्रिकेट खेलना चाहेगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो जिम कहता है डेफिनेटली अगर क्रिकेट मैच रखा जाए तो मेरे सोल्जर्स टॉमी जो है वो डेफिनेटली जीतेंगे। एंड आफ्टर टॉकिंग दिस थिंग्स दे लाफ्ड एट ईच अदर और दे स्टार्टेड watching that game. You could see here in this picture they are playing game with each other, having a football match. और नो मैंस लैंड आपको देख सकते हो, ये एक बाउंड्री होती है इनके बीच में, और ये जो लैंड होता है इसको नो मैंस लैंड कहा जाता है। तो यहाँ से भी सोल्जर्स आए और यहाँ से भी सोल्जर्स आए और इस एरिया में ये लोग खेल रहे हैं एंड अदर्स आर enjoying it. Coney Fritz won 2-1. Okay, so who won the match? Fritz. But as Henwolf generously said, our goals were wider than theirs, so it wasn't quite fair. It wasn't quite fair यानी कि हमारे गोल उनसे ज़्यादा वाइडर थे, so it wasn't fair का मतलब वाजिब होना, it has to be.
The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and rum and sausage had long since run out. It means after finishing that football match, ठीक है, जब मैच फिनिश हो गया तो स्नैप्स, रम, सॉसेज जो बचा हुआ था वो खा रहे, पी रहे और पूरा इंजॉय कर रहे. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और सब कुछ ये सारी चीज़ें ओवर यानी ख़त्म हो गई थी. Hence, I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. तो फिर ये अब सब कुछ हो गया था ख़त्म, सेलिब्रेशन भी, मैच भी. अब इनको अपने अपने ट्रेंचेस में, अपनी अपनी एरिया में वापस रिटर्न होना था. तो जिम हैंस वुल्फ को कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से सही सलामत मिलो, और ना सिर्फ तुम, बाकी तुम्हारे सोल्जर्स भी और हमारे सोल्जर्स भी इस वॉर के बाद सेफली अपने घर जाए. फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स. और मैं सोचता हूँ हर एक सोल्जर यही चाहता होगा कि कोई भी वॉर हो वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए और सब कोई मरे नहीं, अपने अपने घर सब सेफली रिटर्न हो जाए. और इस तरह से ये अपने अपनी जगह पर एक दूसरे को विश करके वहाँ से चले जाते हैं. He turned to wave just one and then became one of the 100 grey-coated men drifting back towards their trenches. और ये सब अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए. नाउ पूरा दिन हो गया इंजॉय करके. जब रात आई, डेट नाइट, बैक इन आ डग आउट्स. डग आउट मतलब एक शेल्टर बनाया जाता है जिसके अंदर ये सोल्जर्स, ग्राउंड के अंदर डग आउट, डग का मतलब खोदना होता है ना, इजंट. और ये लोग खोद के थोड़ा सा अंडरग्राउंड ऐसा अपने लिए रहने की जगह बनाते हैं कि उनके ऊपर कोई भी अटैक हो तो कोई हार्म नहीं हो, डैमेज नहीं हो. तो जब वो उसके अंदर जाते हैं रात को, वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल. कैरल इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग विच इज़ सung ड्यूरिंग क्रिसमस ओकेजन. तो उन्होंने देखा कि सामने वाली जो फ्रिट्स है वहाँ से कैरल के गाने की आवाज़ आ रही है. स्टिल नाश्ड मतलब कि साइलेंट नाइट. इट वॉज स्टिल नैश, साइलेंट नाइट, बिल्कुल साइलेंट रात थी उस दिन. आर बॉयज़ गेव देम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉश्ड. मतलब ये कि वो जो गा रहे थे वापस जिम के जो सोल्जर्स थे वो उनके गाने में उनका साथ दे रहे थे. और वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. एज टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और ऐसा समय पीस और गुडविल का मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलूँगा. जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं इस समय को, ऐसी क्रिसमस को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा. सो हियर ही सेज while ending the letter, dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. यानी कि पता नहीं अब इस वॉर के बाद कौन ज़िंदा रहेगा, कौन मरेगा, nobody knows. तो अगले साल नेक्स्ट ईयर यही वॉर, इट विल बी अ डिस्टेंट मतलब फार, ओके. एंड टेरिबल मेमोरी, टेरिबल मीन्स हॉरिबल, एक डरावनी कह सकते हैं हम, याद रहेगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. तो here Jim want to say कि जो भी आज हुआ of celebrating the Christmas occasion, मेरा ये मानना है कि इस इस इंसिडेंट के बाद, हादसा नहीं कह सकती हूँ मैं, इट वॉज अ रियली अ गुड थिंग. तो इस इंसिडेंट के बाद हर एक सोल्जर, चाहे वो जिम के सोल्जर्स हो या फ्रिट्स ऑफिसर हो और फ्रिट्स सोल्जर हो, शायद हर पर्सन, हर सोल्जर पीस ही चाह रहा होगा. वो मन ही मन यही सोच रहा होगा कि काश यही पीस बना रहे, वॉर नहीं हो. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. तो ही सेज हम बहुत जल्द मिलेंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट मीन्स ही इज श्योर दैट इट विल हैपन सून. सो नाउ इन दिस पार्ट, this was the first Christmas present which Jim got. So this was the best Christmas present in the world for Jim, and not only for Jim but even for those Fritz officer Hans Wolf, these soldiers of both the armies.
So that's why the topic of this chapter, the best Christmas present in the world, वो यहाँ पर इट इज़ बीइंग फिटेड होता है यहाँ पर कि यही चीज़ जो ये लोग चाह रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, कि एक वॉर के टाइम एक बैटल फील्ड जहाँ पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, और वहाँ पर ये लोग इतने पीसफुली क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो शायद उसकी लाइफ का ये सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट उसके लिए रहा होगा। एंड ही एंड्स द लेटर राइटिंग योर लविंग जिम। So here are some questions given. We will discuss in our live class, and I want you people to try to find it out in your own words. आपको सिर्फ अभी फाइंड करके रखना है, so that whenever I ask you, I'll ask you in live class only. So मैं किसी को भी ये क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, तो एक बार रफली you have to find out the answers of this questions. Okay, thank you.